Hi guys, this is Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to talk to you guys about something that I've been, thinking about. And I just thought that this would kind of inspire somebody out there who is a medico to do something that they actually wanted to do all their life. Okay, so yeah, let me just get right into it. Actually, what happened was I was texting with my sister, okay, my cousin sister, and it's been a long time. I think last year Jan में I had participated in Mrs. UP का जो contest होता है, मैंने participate किया था, and मैंने कहीं भी उसका फ़ोटो वीडियो कहीं भी नहीं डाला है ना. मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने वहाँ पे भी नहीं डाला है. आई हैव नॉट पुट इट ऑन एनएस विद अ माइक. आई हैव नॉट पुट इट एनीवेयर. मैंने कहीं भी नहीं डाला है. बट या माई सिस्टर सॉ दैट थिंग ऑन माई इंस्टाग्राम, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे मैंने डाला हुआ है. एंड उन्होंने नहीं देखा होगा, बहुत टाइम से देखा नहीं होगा, एंड वहाँ पे उन्होंने देख लिया होगा. एंड शी जस्ट टेक्सटेड मी सेइंग यार तू गई थी क्या इसमें मिसेस यूपी के इसमें. एंड आई टेक्सटेड हर सेइंग या मैं गई थी. एंड अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली मेरे लिए. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऐसा लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज लाइक आई वांट टू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट दिस इज. ये क्या है, ये नई चीज़ है. सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट goes around here. मुझे बस इतना था. And once I experienced it, it was like overall a good experience, but not something I would actually want to keep pursuing in the future. तो मेरे साथ ये चीज़ थी. And the reason that I'm really talking about this is because हम सब के अंदर एक ऐसी I don't know, एक ऐसा फीलिंग होता है, एक ऐसी चाह होती है कि वी वांट टू एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स. ओके, तो actually the thing is, okay, everybody has their own dreams, the own your own interest. मेरा personally ये था, why did I really register for this interview and ये सब कि really to be very honest, to know more about myself, what things am I really capable of, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या qualities मेरे अंदर है apart from actually being a doctor. क्योंकि क्या होता है ना, बीइंग अ डॉक्टर मोस्ट ऑफ योर 20s यू आर जस्ट स्टडिंग, यू आर जस्ट गिविंग एग्जाम्स, यू आर सिटिंग इन वाइवा, यू आर राइटिंग योर एग्जाम्स, यू आर क्रैमिंग, you are crying, you have so many things that are going on and you basically miss out on life, to be very honest. I think बहुत कम लोग होते हैं जो actually जी पाते हैं एक अच्छी ज़िंदगी, and those lucky ones I would say they are people who have found really good friends. ठीक है, इनका ज़िंदगी अच्छा होता है, because I have also personally seen that. I had about 200 people in my batch, in my MBBS batch, and उसमें से ज़्यादातर लोग who actually enjoyed were people who found really good connections. ठीक है, ये लोग घूमते फिरते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक और ये सब चलता है, but not everybody is so lucky. I was an introverted person. I did not talk to everybody. I had a few friends जो बहुत ही शरीफ टाइप लोग थे, and I did enjoy to an extent, but कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं. पर मैं उस टाइप के ना कैटेगरी में थी, ना मेरे पास इतनी फ्रीडम थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज माई पेरेंट्स वर क्वाइट आई वुड से कंजर्वेटिव. I don't know how to really put it, but or maybe they just wanted to protect me too much, so they did not let me live in a hostel, so I was not able to really open up to a lot of people. That is what happened with me. And anyhow, सबकी कहानी अलग होती है, you can't really generalize anything, but I think for most of the people, ज़्यादातर लोग मेरी तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा enjoy नहीं कर पाते because they are in stress. ठीक है, एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, काफ़ी लोग फेल भी हो जाते हैं, उनको अलग तरीके का स्ट्रेस होता है. So they you don't really have time to enjoy. That is जैसे मैं अपना भी बताऊँ आपको, तो I used to go with friends here and there, लेकिन back of the mind आपके ये रहता ही है कि I have to pass this exam, I have to study, I have to go home and study again. ये सब चीज़ें आपके back of the mind में रहती ही हैं. So throughout doing my MBBS, my post graduation, all of these things were there in my head. ठीक है, it's just after I have been done with all of these, ठीक है, मैंने अपना MD, DNB, anesthesia ये सब जब कर लिया, fellowships भी अभी मेरी हो गई हैं, तो and I am kind of, what do I say, at a point where I'm confident about my job. So at this point of time, and also after getting married, because my husband is really supportive, I had the chance to explore कि मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ.
So this was the first thing that I really did when I came to know कि यार now I have the time, now I can explore things that I really want to do. So the first thing we actually did before even I entered this contest was we went to Andamans. It was a really great experience. We wanted to travel. We've been going here and there, few places here and there in between, and we find that travel is also something that helps you to know yourself better, get different kind of experiences, क्योंकि हर जगह अलग होती है. जहाँ भी आप जाते हो अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे, वहाँ कैसे चीज़ें होती हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा. When you just stay at home, you are not going outside. You don't know what is going around. You're just in your family. You just know things that your family tells you. Your mind does not open up. If you go outside, you meet new people, you see new places, you see how things are done in different areas of the world, then you get to understand different perspectives. Your mind opens, you think. ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है एज वी ट्रैवल्ड वी गॉट टू नो कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट आई थिंक मेडिकोज आर मिसिंग आउट ऑन, क्योंकि इतने हेक्टिक लाइफ शेड्यूल्स हो जाते हैं. इवन आफ्टर वी आर डन विद ऑल ऑफ द डिग्रीज, वी आर एट अ जॉब, still taking leaves, especially when it comes to corporate hospital, taking leaves and stuff, it gets really hard. वो लोग, मुझे लगता है यार कॉर्पोरेट में तो मैंने देखा इवन द सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट्स आर टेकिंग लीव अप्रॉक्सीमेटली 2 times in a year. एक लंबी लीव पे वो लोग छुट्टी पे जाते हैं 2 times a year, that's it. उसके आगे पीछे वो लोग जाते ही नहीं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एक्चुअली लेफ्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार नो, मेडिकल कॉलेज में यू गेट लीव्स, तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड कि यार, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बी कन्फाइंड टू जस्ट बीइंग अ डॉक्टर. दैट इज़ नॉट something I can do, because there are a lot of things that I want to do and explore apart from this, because we have one life and पता नहीं कब end हो जाएगी, किसी को कुछ भी नहीं पता है यार. So it's better to do everything you've always wanted to do, right? So yeah, that was my take of how I wanted to do things. That's why I left corporate for this. So so the first thing we did was travel, and then when we came back after a few months, I just found this advertisement on Instagram and I was like, चलो इसको भर देती हूँ, let's see. And then I got a call saying कि ऐसा कंपटीशन है एंड दैट वी विल बी ग्रूमिंग यू, यू जस्ट हैव टू गिव वन इंटरव्यू ऑनलाइन, और उसके बाद वी विल डिसाइड इफ वी रियली वांट टू वर्क ऑन यू और नॉट. तो ये चीज़ थी. सो आई टोल्ड माई हस्बैंड, ही टोल्ड मी कि यार तू इंटरव्यू तो दे दे, इंटरव्यू देने में कुछ जा नहीं रहा है, सो यू कैन जस्ट सिट फॉर दैट एंड देन लेट्स सी इफ यू आर सिलेक्टेड, देन विल थिंक अबाउट हाउ इट्स गोना गो, लाइक लेट्स सी इफ वी वांट टू गो अहेड और नॉट. तो मैं इंटरव्यू में बैठी थी, and to be really honest, the interview was the best part of it all, because they asked me quite many questions, and those were all aiming at my personality. ठीक है, वो लोग basically मेरा personality, they were asking me questions on how I found this place, like after I shifted from Mumbai to UP side, तो यहाँ पे मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा. They asked me several questions that I don't remember completely. I vaguely remember some things, पर जो feeling मैं आपको बताऊँ, it was I would say empowering, क्योंकि they were really asking me questions about myself. It gave me a chance to know more कि यार मैं अच्छे आंसर दे सकती हूँ लोगों को. I can actually talk, I can give an interview, I can actually be good at it. तो ये सब चीज़ें मुझे अपने बारे में पता चली. सो इट वॉज इन अ वे आई एन्जॉयड इट. ठीक है, ये हुआ. उसके बाद या दे डिड सेलेक्ट मी. आई गॉट अ कॉल इन अ फ्यू डेज एंड दे सेड कि आप सेलेक्ट हो गए हो एंड यू हैव टू कम टू लखनऊ एंड फॉर अ फ्यू डेज. कुछ 4-5 दिन का था, एंड वी विल बी ग्रूमिंग यू फॉर द फर्स्ट 3 days एंड देन यू हैव द मेन थिंग ऑन द लास्ट डे, ऐसे कुछ था. So this is what was the plan, and I again told my husband, and he was like, this is the first time that we have actually gotten exposure to something like this. So definitely you should try, go into it, try it. क्या मतलब क्या कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में. So he supported me, and then my parents also supported me. So I did go to Lucknow, and I gave all of this a chance. ठीक है, तो हम लोग गए. And like I already told you, overall experience was good. But yeah, initially मुझे tough पड़ा, क्योंकि basically मेरे को heels में चलना आता नहीं है. वो सबसे मेरा I would say weakest point था, क्योंकि यार ये सब जो है ना, बातचीत करना and talking, जो एक अच्छा, तो I'll just tell you what the format was. The format was कि यार एक होता है introduction round होता है, जहाँ पे हमको basically लहंगे में
एक रैम्प वॉक टाइप का करना था, जिसके लिए उन्होंने हमको ट्रेन किया हुआ था. सो लहंगे में हमको चल के आना था एंड चल के जाना था. एंड देन एक लाइन में सब पार्टिसिपेंट्स खड़े होते हैं एंड देन यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ एज वन बाई वन हमको देना था. तो दैट वॉज द इंट्रोडक्शन राउंड. तो ये होता है कि इसमें से अब 8 लोग सिलेक्ट होते हैं. वंस द इंट्रोडक्शन राउंड इज डन, 8 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं. नो, नॉट आफ्टर दिस. इसके बाद एक Q&A सेशन होता है. सो हाँ, तो दूसरा होता है गाउन राउंड. ठीक है, सेकंड राउंड होता है गाउन राउंड. तो चलेंगे सब लोग इसमें भी रैंप वॉक ये सब करना होता है, तो वो सब लोग कर रहे थे. लेकिन इसके बाद सो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन में जो जैसे आपने इंट्रो अपना बोला है इस पे, एंड प्लस आप जो रैंप वॉक्स कर रहे हो इन द लहंगा एंड इन द गाउन, तो उसके बेसिस पे आपको मार्क किए जाते हो आप. और इसके बाद एक Q&A सेशन होता है, जो कि Q&A सेशन है उसके पहले दे विल सिलेक्ट 8 पीपल. ठीक है, बेस्ड ऑन द इंट्रो एंड द जो आप चले कैसे हो उसके बेसिस पे दे विल सिलेक्ट 8 पीपल. तो ये था ना मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था ये कि मुझे सेलेक्ट कर लिया था टॉप 8 में. एंड इट वॉज अ गुड मोमेंट क्योंकि आई हैड स्ट्रगल्ड सो मच टू वॉक इन दोज हील्स. मुझसे हो ही नहीं रहा था. आई हैड अ रियली बैड टाइम विद द कोरियोग्राफर. उनका जो कोरियोग्राफर थी ना, शी वॉज लाइक जैसे कमांडो ट्रेनिंग नहीं कराते लोगों की, वैसे टाइप की थी. एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड मुझे आता ही नहीं था यार. एंड शी यूज टू बी बिहाइंड मी कि भाई तेरे को करना नहीं है क्या, तेरे को जीतना नहीं है क्या, ये नहीं वो नहीं. एंड she was to be very honest rude, but anyhow I did not have a great time with her, but I struggled really bad because of her. मैंने बहुत मेहनत की and I finally on the last day I was able to walk in those heels. तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था. उसके ऊपर ये जो टॉप 8 में मैं आ गई थी वो भी मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. क्योंकि इनिशियली आई वॉज एंशियस. जो इंट्रो का भी जो बोलना है वो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग. पर जिस दिन वो शो था उस दिन मैंने सही बोला, मतलब काफ़ी अच्छे से बोला एंड काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोला. तो हाँ, उस दिन मैंने सब सही से कर लिया. आई वॉज इन द टॉप 8 एंड Q&A भी द क्वेश्चन दैट आई वॉज आस्क्ड वॉज like what kind of super power would you like to have if you are given an option. तो ये भी ऐसा था ना. So they were preparing us with a few questions. तो कोई लोगों को chosen questions ही आ रहे थे, कोई लोगों को new questions आ रहे थे. तो ये question उन्होंने हमें kind of prepare किया हुआ था. तो इसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी हमें माइंड में रखाया हुआ था कि रीडिंग अदर पीपल्स माइंड्स, ये आपको इट्स अ गुड आंसर टू गिव. तो वही मेरे मन बिकॉज दे हैव रिकॉर्डेड इट इन माई हेड, तो मैंने वही वहाँ पे बोला. बट उसके आगे मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई. एंड मुझे लगता है वही एक रीज़न था कि बहुत अच्छा वो मेरा राउंड हुआ नहीं. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे उस टाइम पे व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर आई हैड दिस आइडिया इन माई हेड कि द आंसर आई शुड बी टेलिंग आउट लाउड इज़ ये कि मुझे सुपर पावर अगर कोई चाहिए, आई वॉन्ट द पावर टू duplicate myself, क्योंकि then I can do 10 things at once at a time. मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ कर पाऊंगी. दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से आउट लाउड. पर वो हाँ, मैं बोल नहीं पाई क्योंकि वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड था मेरे मन में. और मुझे लगता है अगर ये मैं आंसर दे देती तो डेफिनेटली आई वुड हैव वन. बट एनी हाउ उस चीज़ का मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, उस चीज़ का ये नहीं. बट हाँ, एक चीज़ ये थी कि आप वन का भी नहीं, आई वॉन्टेड टू गिव दैट आंसर क्योंकि वो मेरे मन से था. तो वो एक चीज़ थी जो मैं चाह रही थी. बट एनी हाउ वो हो गया. एंड उसके बाद मुझे पता चला कि विनर्स कोई और 3 है. ठीक है, और इसके बाद मुझे तो ये भी पता चला कि इट्स काइंड ऑफ अ सेटअप. ठीक है, मतलब द डे बिफोर द मेन इवेंट लोगों को जा के पूछा गया है कि वुड यू लाइक टू बी द विनर, और उन्होंने अगर पैसे दे दिए तो देन उनको विनर बनाया गया था. ये सब सेटअप फिक्सिंग थी चीज़ें. एंड ये मुझे बाद में पता चला. बट एनी हाउ आई हैड फन. तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं थे. रिग्रेट मेरे को सिर्फ एक चीज़ का था और वो ये था कि इन्होंने हमको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं किया. 2 लहंगे में फ़ोटो हैं, 2 एक 1 पीस है उसमें फ़ोटो हैं. एंड मज़ा नहीं आया. लाइक दे शुड हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड अस विद द वीडियोज़ एटलीस्ट जो स्टेज पे जो उस दिन हुआ था. एंड आई हैव दोज वीडियोज़ दैट माई हस्बैंड टुक. पर मेरे पास इंट्रो का नहीं है, मेरे पास सिर्फ Q&A का है. और मैंने इंट्रो बहुत बढ़िया बोला था, वो मेरे पास है ही नहीं. तो थोड़ा दुख इसी चीज़ का होता है कि यार दे कुड हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग एंड प्रोवाइडेड अस विद इट. इवन इफ अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते वो भी प्रॉब्लम नहीं होती. पर ये उन्होंने गलत किया. आई थिंक मैं बहुत पीछे पड़ी थी उनके कि हम दे दो. दे वर नॉट एंटरटेनिंग. एंड हाँ, तो ये चीज़ हुई थी. एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट. बट वॉट आई रियलाइज फॉर माई सेल्फ वॉज दैट इन सब
पेजेंट्स में और कॉम्पिटिशन्स में ना यही है कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, तो पीपल विल बी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, एंड व्हाट आई रियलाइज वाज आई एम नॉट कॉम्पिटिटिव एट ऑल. फॉर द पीपल दैट हैव वॉच्ड माई वीडियो ऑन एनेस्थीसिया, आई थिंक यू हैव सीन कि यार आई टुक एनेस्थीसिया बिकॉज आई डोंट हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. इट्स नॉट इन मी, और मैं कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहती हूँ. सो दैट इज़ वाई आई डोंट थिंक दिस वाज समथिंग कि जो एक और बार मैं ट्राई करना चाहूँ. हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन यही है यार, ऐसे चीज़ों में आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है और मुझे नहीं होना है. आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉम्पिटिटिव, तो मैं नहीं होना चाहती थी. एंड मुझे ये एक और चीज़ समझ में आई, क्योंकि व्हेन आई केम बैक होम एंड आई वॉज एबल टू वेयर माई कंफर्टेबल क्लोथ्स दैट आई वेयर एट होम, आई वॉज रियली हैप्पी. आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मैं थक चुकी थी इतने दिन सुंदर लगते लगते, इतने दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एंड मेकअप शेकअप करके निकल के. ये मेरे मतलब इट्स नॉट मी, ठीक है. तो ये आई डोंट थिंक, मुझे यही लगा कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू कंटिन्यूसली, ठीक है. कभी कभार कोई इवेंट है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू रियली गेट इनटू मेन स्ट्रीम. सो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन, एंड ट्रस्ट मी इट वॉज गुड बिकॉज इट्स समथिंग न्यू फॉर यू. आपने कभी नहीं की है वो चीज़, आपने वो कर दी, तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, मज़ा आता है, थ्रिल आता है, एडवेंचर आता है. तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए. बट येस, एक और चीज़ मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि देखो, बाहरी दुनिया में क्योंकि आप डॉक्टर हो, यू विल एक्सपेक्ट कि एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, एक लेवल ऑफ इज़्ज़त आपको मिलनी चाहिए. पर मैं एक सच्ची बात आपको बताऊँ, आप बाहर जाओगे, सम पीपल माइट रिकग्नाइज यू बट मोस्ट पीपल विल नॉट. दे डोंट केयर कि आप डॉक्टर हो, कि आप दे डोंट केयर बेसिकली. तो ये एक चीज़ और मुझे रियलाइज़ हुई थी वहाँ पे. सो दैट्स वाई इनसाइड द हॉस्पिटल में भी यू माइट बी अ सीनियर, आपको इज्जत मिल रही होगी, लेकिन बाहर आपको उस चीज़ के लिए हमेशा इज्जत नहीं मिलती है. सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल, एंड यू शुड सी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल. दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक न्यू एक्सपीरियंसेस अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल, लाइक ट्रैवलिंग, लाइक going to certain events where you meet non-medico people, ठीक है. Apart from this, अभी की जो मैं बात करूँ, I am into, like I've already told you, I am learning guitar and I'm learning to sing, and these are some things that I am doing apart from being a doctor, because these are some things I've always dreamt of since childhood. एंड मुझे लगता है टू एन एक्सटेंट, जो लोग देखते हैं मेरे वीडियोज़ उनको पता है कि जो लूफी वाली सीरीज़ है उसको देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि he inspires you to go after your dreams. When I saw that series, I started thinking यार मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ. So that is when I started to go for these singing classes. और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई, I just went to one of the open mics near my house, and वहाँ पे मुझे एक गिटार टीचर भी मिल गए. So it's been a great experience so far, and I would just want, the reason that I'm telling you all of this is because there are mostly medicos in this channel. ज़्यादा से ज़्यादा लोग must be, whoever my subscribers are must be medicos, right? So I just want you all to know that your life is not just ending here. आपकी ज़िंदगी सिर्फ मेडिसिन में एंड नहीं होती है. जस्ट बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट योर लाइफ. यू हैव अदर थिंग्स एज वेल बियॉन्ड दिस, ठीक है. तो उस पर भी आप ध्यान दो, क्योंकि लाइक आई सेड इन मल्टीपल वीडियोज़ नाउ कि MBBS के बाद एक स्टेबल इनकम हो जाती है, इवन इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, इवन इफ़ यू हैव several other things to take care of. Take out time, take out some finance for things that you really want to do for yourself, because that is important. Being a doctor does not mean you sacrifice everything that you are and just get into it. Pay attention to yourself, be good to yourself, do what you want to do. You don't know when your life is gonna end. Please take care of yourself, take care of your dreams, what you really want to do, and that's what I just wanted to convey here by just telling you my experience. And yeah, I'll see you for another one.